good, well, better, best, late, later, later, latest, last, little, less, least, may, many, much, more, most. गड़बड़ कर दी. Is there terrorist attacks prove, and what are the important factors behind the spread of terrorism? नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से रिलेटेड. So voluntary blood donation is a noble social service. More than 3/4 of our population depends upon government hospitals for treatment. The people suffering from different diseases and victims of accidents often requires blood transfusion. And besides, surgical operations hardly go without blood transfusion, and hence the blood banks in hospitals should always be well stocked to meet the demands of the vital need. A major share of blood comes from voluntary donors. Still, people face the scarcity of the blood in emergency. It happens because people at large are not fully aware of the need to donate blood. We must know that blood donation is not at all the harmful to a normally healthy person. The blood donated is made by the body within 48 hours. A person can give blood at regular intervals without any side effect. However, all precautionary measures should be taken prior of blood donation, as infected needles and bottles must not be used. Let us all be mentally prepared to donate blood for the noble cause of our ailing brethren. Next बच्चों क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी पैराग्राफ पर बेस्ड, जिसके अंदर बताएगा why is blood needed and how often can an individual donate blood. Fill in the blanks. Voluntary blood donation is a dash social service. Blood dash is needed by the people suffering from diseases and accidents. The bad, worst, for, former, foremost, good, well, better, best, late, later, latest, last, little, less, least, many, much, more, most. Read the following sentences for the use of degrees of adjectives बच्चों, जिसके अंदर sentences दिए गए हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को लेकर. द पॉन्ड इज वेरी डीप, सो डीप इज हियर पॉजिटिव. द रिवर इज डीपर देन दिस पॉन्ड, दिस इज द कंपैरेटिव. कंपेयर किसमें बच्चों, रिवर और पॉन्ड के बीच में. द ओशन इज द डीपेस्ट ऑफ ऑल वाटर बॉडीज, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री बच्चों, डीपेस्ट. He is a keen observer, this is a positive. She is a keener observer than him, comparative. You are the keenest observer of all in the class, this is a superlative. I have a little money in my purse, positive, a little. I have less money in my pocket, this is a comparative. I have the least money in my bag, superlative. Formation of comparative and superlative degrees बच्चों adverbs के बेस पर देखते हैं. Like adjectives, adverbs can also be used to compare. Only the adverbs of manner, adverbs of time and adverbs of degrees can be used to compare बच्चों. The rules of changing positive degree into comparative and superlative degrees are similar to those of adjective. Like positive, comparative and superlative के बेस पर देखते हैं बच्चों. adjective में adverbs के बेस पर fast, faster, fastest, hard, harder, hardest, long, longer, longest, near, nearer, nearest, स्लो होगी. हाथी ने यह शर्त मंजूर कर ली. मंजूर कर ली मतलब मान ली. ठीक है. अब मोटी रस्सी मंगवाते हैं. मंगवाई गई और उसे पैर में बांधकर कछुआ उस गहरी नदी में चला गया. रस्सी का दूसरा सिरा हाथी ने पकड़ लिया. नदी के अंदर जाते ही कछुए ने अपनी पत्नी और बच्चों की मदद से वह रस्सी एक बड़ी सी चट्टान पर लपेट दी और अपना सिर पानी के ऊपर निकाल कर हाथी से कहा, हाथी भाई खींचो. मदद क्या होता है, सहायता. ठीक है. अब देखो खरगोश जो है, कछुआ जो है वो कितना चालाक था. वो क्या करता है, वो अपनी परिवार की मदद से उस रस्सी को एक चट्टान से बांध देता है और आवाज लगाता है हाथी को कि खींच लो रस्सी. यह सुनते ही हाथी ने सोचा कि कछुए को बाहर खींचने के लिए जोर लगाने की जरूरत ही क्या है, इसलिए उसने पहले रस्सी को थोड़ा खींचा. जब वह नहीं खींची तो थोड़ा और जोर लगाया, फिर और थोड़ा जोर लगाया, लेकिन जब रस्सी नहीं खींच पाया तो उसने पूरा जोर लगा दिया. वह बड़ी सी चट्टान पर लिपटी उस रस्सी को नहीं खींच सका. अब तक आसपास के सभी जानवर शर्त देखने के लिए बाहर आ चुके थे. ठीक है. सभी जानवर जो है वहां इकट्ठे हो गए थे कि कौन जीतेगा ये देखने के लिए. उन्हें देखकर हाथी ने गुस्से से भरकर एक बार फिर जोर लगाया. इतना जोर लगाया कि रस्सी टूट गई और हाथी धड़ाम से गिर पड़ा. यह देखकर सभी जानवरों की हंसी छूट गई.
जोर क्या होता है? बहुत ताकत से। ठीक है, अब रस्सी टूट जाती है, हाथी गिर जाता है, सब जानवर हंसने लग जाते हैं। हाथी चिंघाड़ कर सबके पीछे भागा तो सभी जानवर वहां से भाग गए। हाथी शर्त हार गया तो शर्म और झुंझलाहट में भरकर वह भी वहां से चला गया। अब मगर की बारी आई। मगर अपने साथी की हालत देखकर गुस्से से भर उठा। उसने कछुए से कहा, कछुए मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा, चल दूसरी रस्सी ला। मजा चखा कर मतलब बदला लेना, कि मैं अपने दोस्त का बदला लेकर रहूंगा। दूसरी रस्सी लाई गई। अब कछुए ने अकल लगाई और कहा कि इस बार वह जमीन पर रहेगा और मगर को उसे नदी से खींचना होगा और उसे केवल 3 बार में ही ऐसा करना होगा। यह शर्त बिना किसी हिचकिचाहट के मगर ने स्वीकार कर ली। हिचकिचाहट मतलब बिना संकोच के। ठीक है, अब मगर ने स्वीकार कर ली। मगर अपना छोर पकड़कर धप से नदी में कूद पड़ा। इधर कछुए ने इधर उधर देखकर जल्दी से वह रस्सी एक पेड़ से, बड़े से पेड़ से चारों ओर लपेट दी। फिर थोड़ा आगे आकर वह रस्सी पकड़ ली और मगर से कहा, मगर भाई खींचो। यह सुनते ही मगर ने पहले हल्का जोर लगाया, फिर थोड़ा और जोर लगाया, परंतु कछुए को नदी में नहीं खींच सका। तो फिर पूरा जोर लगाया। अब उसके तीनों प्रयास खत्म हो गए। प्रयास मतलब प्रयत्न, तीनों कोशिशें खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि 3 बारी शर्त थी कि 3 बारी कोशिश करेंगे। वो नाकामयाब होने पर उसे लगा कि वह बाहर निकला तो सब हाथी की तरह उसकी हंसी उड़ाएंगे। यही सोचकर वह बाहर नहीं निकला और नदी के दूसरी ओर जाने लगा। तभी कछुए ने पेड़ से रस्सी खोलकर अपने पैर में बांधकर जोर से कहा, अरे मगर भाई जरा बाहर तो आइए, अब ये रस्सी मेरे पैर से खुल नहीं रही, मेरी मदद कीजिए। परंतु मगर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नाकामयाब क्या होता है? असफल। अब मगरमच्छ जो है वो भी नहीं जीतता, तो उसको लगता है मेरी भी बेइज्जती होगी हाथी की तरह, तो वो नदी के दूसरे किनारे चला जाता है। फिर धीरे से अपने आप से बुदबुदाया, बड़े शरीर से कोई ताकतवर नहीं होता, असली ताकत तो अक्ल में ही होती है। ठीक है, अब वो क्या करता है? वो पेड़ से रस्सी खोल के कछुआ क्या करता है? अपने पैर पर बांध लेता है और मगरमच्छ को कहता है कि मेरी रस्सी खोल दो, लेकिन मगरमच्छ ध्यान नहीं देता। तो फिर कछुआ अपने आप से कहता है कि देखा कि बड़ा शरीर होने से कोई ताकतवर नहीं होता, असली ताकत कहाँ होती है? अक्ल में होती है, यानी कि दिमाग में होती है, कि आप कैसा सोचते हो, क्या आपका दिमाग है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि बुद्धि ताकत से हमेशा बड़ी होती है, यानी कि बड़ा शरीर होने से, पहलवान होने से कुछ नहीं होता। असली ताकत आपके दिमाग में होती है कि आप कैसे सोचते हो, आपकी बुद्धि कैसी है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद करेंगे।